الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج 10 جنوری سن 2025 9 رجب المرجب 1446 ہجری. بیان نمبر 108. بیان کی تمہید آج کچھ یوں سمجھیے کہ جب کسی معاشرے کے اندر کوئی برائی عام ہو جاتی ہے، وہ رواج پکڑ جاتی ہے، تو پھر وہ برائی کرنے میں لوگوں کے اندر سے شرم جھجک دور ہو جاتی ہے. وہ بے خوف، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی اکتاہٹ کے، کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس گناہ کو کرتے ہیں. اور بسا اوقات پھر وہ برائی اتنی پھیل جاتی ہے کہ اس برائی کے رائج ہو جانے کی وجہ سے اس کا نام ہی بدل کر اسے یوں سمجھیے کہ ایک چوری اور پھر سینہ زوری کے ساتھ سو کیا جاتا ہے. اس کی معاشرے میں ہمارے کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر فحاشی، بے پردگی. جب پہلے کوئی بے پردہ ہوتا تھا، خاص طور پر کوئی خاتون، تو اسے کوئی برا کہتا بھی تھا اور اس کو سمجھاتا بھی تھا، حتیٰ کہ دوپٹہ بھی سر سے اترتا تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن اب اتنا بے پردگی عام ہو چکی ہے کہ اب تو دوپٹے رکھنے کو گویا کہ دقیانوسی خیالات سمجھا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ جاہل سمجھا جاتا ہے. اب اس بے پردگی کو بجائے گناہ سمجھنے کے اب اسے فیشن کا، اسے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے. ایسے ہی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بددیانتی کرنا، رشوت لینا، ان کو جب سمجھایا جائے کہ جھوٹ نہیں بولو تو وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں رہنا ہے تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا، اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلے گا. یعنی اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب یہاں تک لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو ہی سچا سمجھا جاتا ہے اور سچا بولنے والے کی بات کو یقین نہیں کیا جاتا. اسے جو ہے وہ جب بات گھما پھرا کر کرے تو اسے نام یو ٹرن لینے کا نام دے دیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست ہے، سیاست، یہ ہوشیاری ہے، یہ چالاکی ہے، یہ ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ یہ تو ضرورت ہے وقت کی. ڈاکٹر اقبال نے خوب لکھا ہے، تھا جو ناخوب بتدریج ہوا خوب وہی، جو اچھا نہیں تھا وہی اچھا ہونے لگ گیا. کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اور یوں بھی کہا جائے اس کو کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا معیار. جو چیز پہلے بری ہوتی تھی اب اچھی لگنے لگتی ہے. اب غلامی کس کی ہے؟ نفس کی، شیطان کی، اپنے مفاد کی. اس وجہ سے ہم برائی کو اچھا سمجھنے لگے ہیں. یوں ہی مسلمانوں کو تکلیف دینا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور پھر اس کے بعد بھی اب تک جو کچھ دین کا درد رکھتے ہیں، جنہیں دین کی کچھ سمجھ ہے، دین کا علم رکھتے ہیں، ان میں انسانیت باقی ہے، تو وہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے کو برا ہی سمجھتے ہیں. نہ دیتے ہیں کسی کو تکلیف، اور کوئی اور دے رہا ہو تو اسے سمجھاتے ہیں، اسے برا کہتے ہیں کہ یہ تکلیف مت دو. لیکن وہی کہ جب یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے تکلیف دینا، کہ اب اسی تکلیف دینے کو مذاق مسخری کہا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو تفریح لیا جا رہا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہ. اور معاذ اللہ اس طرح پرینکس کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کر کے تکلیف پہنچا کر لطف حاصل کیا بھی جاتا ہے اور اس لطف کو عام بھی کیا جاتا ہے. یاد رکھیے، مسلمان کو تکلیف دینا، جس کے بارے میں آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی سنا، یہ اسی گفتگو کا بقیہ حصہ سمجھ لیجیے کہ مسلمان کو چاہے آپ اس کا وقت ضائع کر کے، برباد کر کے تکلیف دیں، یا اس کے راستے میں تنگی ڈال کر تکلیف دیں، یا اور کسی بھی لحاظ سے، یاد رکھیے مسلمان کو تکلیف دینا، جس کے متعلق سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، فَإِنَّ زِنَا عِنْدَ اللَّهِ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین زنا وہ یہ ہے کہ کسی مومن کی عزت کو کوئی اپنے لیے حلال سمجھ لے اور اس کو تکلیف پہنچائے. اور پھر یہ آیت پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو
मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को तकलीफ पहुंचाते हैं बगैर मक्तसबू, बगैर किसी वजह। जब किसी की जाए, खैरात सदका किया जाए, तो उस मामले में भी मुस्तहिकीन को तकलीफ पहुंचाई जाती है। हम नेकी करके उसे उस बुराई के अंदर मुब्तला, उसे ढाल कर उस नेकी के अंदर ही बुराई करके उस नेकी को बर्बाद कर देते हैं। किस तरह तकलीफ पहुंचाई जाती है? मुस्तहिकीन को बिला वजह, कोई मुस्तहक है, उसकी आप मदद कर रहे हैं, उसको खैरात सदका दे रहे हैं, अब उनको क्या करते हैं? बिला वजह लंबी लंबी कतारें लगवाते हैं, लाइनों में लग जाएंगी, बिला वजह उनको लंबी लंबी कतारों में खड़ा करके उनको तकलीफ दी जाती है और उनके चक्कर लगवाए जाते हैं। भाई अगर उनकी मदद करनी है तो कर दो। आजकल तो इतनी आसान है मदद करना कि किसी के मोबाइल अकाउंट पर भी आज पैसे भेज दिए जाए, उसकी मदद हो जाती है। इतना आसान है कि किसी भी तरीके से किसी को पता भी ना चले और उस तक आपकी मदद पहुंच जाए, उसे ये भी ना पता चले कि देने वाला कौन, भेजने वाला कौन, लाने वाला कौन, उस तक मदद पहुंच जाए। लेकिन हम लोगों को जब मदद के नाम पर बुलाते हैं तो उनको तकलीफ देते हैं, धूप में नायलें लगवाएंगे, उनको उनकी ख्वारी करवाएंगे, उनको उनके नाम लिखवाएंगे, उनका डेटा लेंगे। उसकी कोई वजह हो वो एक अलग बात है, लेकिन बाज़ औक़ात उनको खैरात के नाम पर तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाता है और उनके इस तरह से देने लेने को, यानी उनकी गरीब की मदद की जा रही है, उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं, उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, वो वायरल की जाती हैं। वो लेने वाला, इमदाद लेने वाला भी बाज़ औक़ात बाद में शर्मिंदा होता है कि मैंने ये क्या किया। जब उसको दुनिया देखती है, उसकी खबरें चलती हैं, उसको सोशल मीडिया पर देखा जाता है, उसको तकलीफ पहुंचती है। अगर हम तसव्वुर करें कि कोई हमारी मदद करे और वो हमारी मदद करते हुए वो तस्वीर लोगों तक फैल जाए, लोग देखें और हमारे किसी जानने वाले तक वो तस्वीर पहुंचे, तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। इसी तरह गरीबों को यूं रुसवा करना, ये कितनी बुरी बात है। उनकी तजलील की जाती है, उनके साथ तौहीन आमेज लहजे, उनको ताने दिए जाते हैं, उनको रुसवा किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, उनके ऊपर एहसान जतलाया जाता है। और एहसान जतलाना अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, फरमाया ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, तो तुम अपने सदका और खैरात को बातिल मत करो, खराब मत करो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर। और हम तकलीफ पहुंचाते हैं, मुस्तहकीन को तकलीफ देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज अमल किस तरह था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर किसी को पता चले किसी की मदद करके आ जाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे घर की सफाई सुथराई कर जाया करते, घर के एक नाबीना औरत के घर के काम करके आ जाते थे, उसे भी पता नहीं चलता था कि कौन काम करके गया है। इस तरह मदद होती थी। और आज जो है वो हमारे यहाँ जो अमीर हजरात जो किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो वो गरीबों को भी अपने दरवाजे पर खड़ा करवाते हैं, उनके चक्कर लगवाएंगे, उनकी वीडियोस तस्वीर बनवाएंगे, उनको जलील और रुसवा करेंगे, उनको अजियत पहुंचाएंगे, फिर उनकी मदद होगी। याद रखिए कि ये अच्छा अमल नहीं। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम 13 रजबुल मुरज्जब, 4 दिन के बाद जिनका यौम विलादत है, उनके मुतालिक आता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया, वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं दिन और रात में और छुपे और ज़ाहिरी। फरमाया ये कौन थे? ये हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं, जिनके बारे में आयत करीमा नाज़िल हुई। ऐसे छुपकर मदद किया करते थे कि पता भी नहीं चलता था और मदद जिसकी की जाए उसको उसकी मदद भी हो जाती थी। हम भी ये तर्ज अपनाएं, मदद करने के मामले में तकलीफ ना दें, बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर हदीस के उस मफहूम को सामने रखें कि तुम दाएं हाथ से सदका दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता ना चले। मतलब ये कि इतना छुपा कर दो कि किसी को पता भी ना चले। जिसको दो, अब तो जैसे मैंने जिक्र किया कि उसको जिसको दिया जा रहा है उसको दे दो, उसको भी पता ना चले कि किसने दिया, इस तरह उसकी मदद उस तक पहुंचा दो। इसी तरीके से हज और उम्रे के मौके पर तकलीफ में मुब्तला होते हैं लोग, करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। किस तरह तवाफ के दौरान हजर अस्वद को बोसा देना है। अब लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, हज पर जाएंगे, फार्म भर दिए, नाम आ गए हैं, तैयारियां हैं, रमजान के बाद फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। अब वहां हज के मौके पर तवाफ के दौरान खास तौर पर जब हजर अस्वद को चूमने का मौका आता है तो हजर अस्वद चूमने के लिए लोगों को मैंने देखा है बाकायदा चादरों से पकड़ पकड़ कर खींच रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं, ना औरतों का ख्याल, ना मर्दों का ख्याल, ना बच्चों का ख्याल। हालांकि हजर अस्वद को चूमना, जिसका अल्टरनेट मौजूद है कि अगर चूमने की गुंजाइश ना हो, मौका ना हो, रश हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो फिर दूर से हाथ यूं खड़े करके अपने हाथों को चूमकर इस्तेलाम कर लो, वही सवाब मिलेगा जैसे तुमने हजर अस्वद को गोया बोसा दिया है। लेकिन ये अमल मुस्तहब जो है, इसमें हम लोगों को तकलीफ देते हैं, धक्के देते हैं। बसा औकात कोई गिर जाए, कोई बुजुर्ग, तो फिर वो मारा जाता है। तो इस तरह तकलीफ पहुंचाना, हज जैसे मौके पर, उम्रे जैसे मौके पर तकलीफ पहुंचाई, मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये हराम है। यूं ही किसी और के जूते पहनकर चल देते हैं मस्जिदों में भी, और वहां मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में किसी के भी जूते मिले, पहनकर चले गए। ऐसे मौकों पर तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बसा औकात किसी खास जगह पर बैठने की कोई फजीलत हो, जैसे हतीम के अंदर, वहां पर बैठने के लिए दूसरों को तकलीफ दे, धक्के दे देकर बाकायदा जगह पर बैठते हैं। या इसी तरह हमारे यहाँ आम जगहों पर भी होता है, मस्जिदों में अपने लिए किसी मौके पर किसी खास जगह को खास करके यूं बैठ जाना कि अब किसी को बैठने ही नहीं देना, और कोई बैठ गया तो उसको हटा देना कि हटो ये मेरी जगह है,
याद रखिए कि इस तरह किसी को तकलीफ देना ये भी दुरुस्त नहीं है। किसी को तकलीफ देकर, चाहे मस्जिद हो, मस्जिद हराम हो, मस्जिद नबवी हो, तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। उसका दिल दुखता है, तकलीफ बसा औकात उसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रही होती। कोई आपको आपकी जगह से उठा के हटो, ये मेरी जगह में, यहाँ मैं बैठूंगा, और उसमें उसको आपको तकलीफ होगी या नहीं, ये आप अपने दिल से सवाल कीजिए। यानी हर मुसलमान अपना ख्याल रखे, अपने आप को समझे कि मैं किसी के साथ कैसा सलूक कर रहा हूँ। इसी तरीके से अयादत के मौके पर देखिए मुसलमानों को किस तरह तकलीफ पहुंचाई जाती है। किसी की बीमार पुरसी करना कितनी आला नेकी है। किताबों में लिखा है कि हजरत अली अबू फाख्ता सईद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत अली ने मुझे कहा कि आओ हसन की इयादत करके आए, इनके अपने बेटे की, और बाप बेटे की इयादत को जा रहा है, उनकी बीमार पुरसी, बीमार को पूछने जाना, उसकी खैर खैरियत जाकर दरियाफ्त करना बड़े सवाब का काम है। जब तक चलता है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो फरमाया कि हजरत अली गए, देखा हजरत अबू मूसा अशअरी वहां पहले मौजूद हैं, पूछा मुलाकात के लिए आए हैं या इयादत के लिए? कहने लगे इयादत के लिए। आपने हदीस सुनाई, फरमाया मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गदवतन इल्ला सल्ला अलैहि सबऊना अल्फ मलकिन हत्ता युमसी। फरमाया कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है, अगर वो शाम के वक्त इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह तक मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, और कोई सुबह इयादत करता है तो शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और आखिर में फरमाया वकान लहू खरीफुन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक बाग तैयार फरमाता है, एक बाग उसके लिए खास कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ बीमार को तकलीफ कैसे पहुंचाई जाती है? इयादत करने गए, कोई बीमार पड़ गया, अब उसका बीमार होना भी उसके लिए मुसीबत, एक मुसीबत पहले उसकी बीमार होना, उसके ऊपर आने वाले उसके ऊपर इतनी मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि वो आने वाले उसके लिए मुसीबत बन जाते हैं। पूरा पूरा खानदान उसकी उठकर इयादत करने के लिए जा रहा है, और जिस जो बीमार पड़ा है, अब वो उन आने वालों की वो बजाय उसके लिए कुछ लाने के, उसके लिए कुछ फल फ्रूट लेकर जाते, उसके लिए किसी जो उसकी जरूरत की चीज होती, और ना सही उसके हाथ में चंद पैसे, चंद रुपए, 100, 200, 500 जितनी हैसियत अल्लाह ने दी हो, वैसे ही तोहफा देकर आ जाते। वो मुस्तहिक ना सही ये काम करके आते, उसके घर पर जाते हैं, घर के 4-6 अफराद जाएंगे, उनके घर पर बैठकर अच्छा नाश्ता खाना पीना करके आएंगे, जूस भी पियेंगे, उसके घर के अंदर जो है वो खाना भी खाएंगे। अगर छोटे छोटे बच्चों को ले जाएंगे तो उसके घर के बच्चे उसके घर में जाकर उधम उठा देंगे, घर की चीजों में घुसेंगे, तकलीफ उस बीमार को पहुंचा कर आएंगे उल्टी। वो पहले तकलीफ में है, वो ये सोचता है कि काश मैं बीमार ना होता, या बीमार होता तो ये मुझे पूछने ना ही आते तो अच्छा था। ये हमारे यहाँ जो है वो इस तरह बीमारों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, किस तरह तांता बनता है, ऐसा हल्ला बोलते हैं कि फिर जाकर गैर जरूरी मशवरे पर मशवरे, अपनी तरफ से कुछ पता हो या ना पता हो, फजूल सवालात। अब 10 बंदे पूछने आएंगे तो बीमारी के बारे में वो 10 बंदों को बताएगा, शुरू से लेकर आखिर तक, अलिफ से लेकर ये तक सारी तफसील बताएगा। यूं हुआ, इस डॉक्टर को दिखाया, उसने ये दवा दी, फिर यूं नहीं हुआ तो वहां जाना पड़ा, उस सबको बताकर वो भी थक जाता है। ये तकलीफ पर तकलीफ है उस बीमार को, उसे डरा दिया जाता है, अच्छा ये बीमारी तो उसको भी हुई थी, बस अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, यहाँ तक उसको डरा दिया जाता है। बजाय उसको डराने के उसको हौसला दिया जाए। हमें तो इयादत के आदाब भी नहीं पता, उसको दुआ सिखाई जाए, उसको दुआ बताई जाए, क्या दुआ देनी उसको, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस बीमारी को तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देगा, ये कहा जाए उसको सब्र दिया जाए, उसको हौसला दिया जाए, ना ये कि उसको तकलीफ पहुंचाई जाए। दिल खुश करके आना चाहिए। इसी तरीके से मस्जिदों के अंदर बैठकर लोग तकलीफ देते हैं लोगों को। मिसाल के तौर पर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, उसके आसपास इतनी तेज तेज आवाज से बातें करना, शोर मचाना कि उसको तकलीफ हो, ये तकलीफ देना, उसकी नमाज में खलल डालना जिसकी वजह से वो तशवीश में पड़ जाए, गलत बात है। इबादत के दौरान तो किसी के आगे से चुपके से गुजरना भी मना है, और लोग गुजर रहे होते हैं। लोग नमाजी के आगे से गुजरना कोई बुरी बात नहीं समझते, भाई गुनाह है ये। लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, एक सफ के आगे से नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक नमाजी की नजर जा रही है उन नजरों के इहाते तक गुजरना बिल्कुल मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुजरने वाले को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने में क्या है, यानी क्या गुनाह है, क्या मुसीबत है, 100 साल खड़ा रहना वो बेहतर समझेगा, गुजरेगा नहीं। लेकिन हम ऐसे गुजर जाते हैं कि जी हमारा काम, हालांकि कितनी देर होती है, मुश्किल से नमाजी को सलाम फेरने में 2-3 मिनट लगती है, 4 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो लंबी नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन हम लोग नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं। तो इस तरह उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, उसको तशवीश में मुब्तला करते हैं। इसी तरीके से बसा औकात गर्दनें फैलाते हैं। जुमे का दिन है, जगह आगे मौजूद है, आने वालों को चाहिए, जो पीछे बैठते हैं उनको भी चाहिए कि जब तक आगे जगह मौजूद है आगे बैठें। ये मैं सबसे कह रहा हूँ, अगली सफों को पहले पुर किया जाए। इसके बारे में हम बता कर भी थक गए। हमें नमाजी कहते हैं कि आप ऐलान किया, कितना ऐलान करें, कितना समझाएं, बच्चे हैं, दूध पीते हैं, पानी को अब तक मम्मम बोलते हैं, समझदार लोग हैं। समझदार होने का सबूत ये देना चाहिए कि आकर सफ को पूरा करें, सफ को भरें पहले जहां जगह खाली हो। उसके बाद गर्दनें फैलाते हैं, तो जो जगह छोड़कर बैठा उसकी गलती कि वो क्यों छोड़कर बैठा, और अगर जगह नहीं थी और जबरदस्ती गर्दन फैलाएंगी तो उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया, वो उसने अपने जरिए जहन्नम का रास्ता आसान कर लिया। इतनी सख्त वईदें होने के बावजूद हम तकलीफ में मुब्तला करते हैं, हटा कर लोगों को तकलीफ देते हैं। जगह ना होते हुए जगह में घुस जाना ये भी गलत है, और जगह होते हुए ना बैठना ये भी गलत है। इसी तरह मस्जिद के अंदर बदबूदार अशिया खा पी कर बाज लोग
सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, पान मावे गुटके खाते हैं, तो मुंह से बदबू आती है, बाकायदा भांस उठती है बाकायदा उनके साथ बात करते हुए। तो इस तरह न सिर्फ किसी नमाजी को या किसी बात करने वाले को तकलीफ, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते उसके मुंह पर अपना मुंह रखते हैं, जो वो कुरान पढ़ता है वो फरिश्तों के मुंह में दाखिल होता है, और अगर उसके मुंह से बदबू आती हो तो फरिश्तों को सख्त तकलीफ होती है, और अल्लाह के फरिश्ते तकलीफ में मुब्तला होते हैं। तो हम तो इंसानों को तो छोड़, जानवरों को तो छोड़, अल्लाह के फरिश्तों को तकलीफ देते हैं। मना है तकलीफ देना, किसी के साथ बातें करके इशारों में उसको तकलीफ देना, जबान से गालियां दे देकर किसी को तकलीफ पहुंचाना, जबान से किसी को अजियत पहुंचाना कितनी बुरी बात है। और जबान का गंदा होना हम देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर ताने देकर तकलीफ मारना, तकलीफ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, बड़ी नमाज की पाबंद है, नमाज रोजा बड़ा मजबूत है, लेकिन अपने पड़ोसियों को जबान से नहीं छोड़ती, कोई इसको कुछ बोल तो दे, ऐसी जबान से खरी खरी सुनाती है, मुंह बंद कर देती है। यानी हमारे मफहूम में यूं समझा जाएगा उसको, जिस तरह हमारे यहाँ मेरे सामने बोलकर तो दिखा, ऐसे ऐसे जवाब दूंगा कि अपने आप अपने शर्म में पानी में डूब जाएगा। लेकिन जबान की तकलीफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज रोजे अपनी जगह, अगर वो ऐसे तकलीफ पहुंचाती है हिया फिन नार, वो दोज़ख में है, जहन्नमी है। और फिर एक और औरत का जिक्र किया, या रसूलुल्लाह इतनी पाबंदी से नमाज रोजे नहीं कर पाती, इंसानी बशरी तकाज़ों के मुताबिक गलती हो जाती है, लेकिन जबान की बहुत अच्छी है, जबान से किसी को तकलीफ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिया फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसकी जबान की इस नेकी की वजह से उस जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। हम तो जबान से, हाथ से, आंखों के इशारों से, हर तरह से तकलीफ पहुंचाते हैं, तकलीफ से बचिए। यूं ही वफात याफ्तगान को तकलीफ पहुंचाना, जो मर गया है उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। इस तरह वफात पा जाने वाले को उस पर बहुत ज्यादा यूं रोना, एक आंखों से आंसू आ रहे हैं, दिल में गम है, दुख है, वो अपनी जगह आता है, दुख होता है, लेकिन वावेला मचाना, सीना पीटना, बैन करना, नोहा करना, उस मरने वाले को बाकायदा पकड़ पकड़ कर, और औरतें मैयत को झंझोड़ रही होती हैं कि उठ जा, वो मर चुका है, उसको तकलीफ दी जा रही है, उसके झूठे औसाफ बयान किए जाते हैं, जो उसमें नहीं थी खूबियां, जब तक जिंदा था तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं थी, अब मर गया तो अब उसके झूठे औसाफ बयान किए जाते हैं, तो ऐसा था, तो ऐसा था, ये तकलीफ हो रही है उसको। मैयत के पेट पर भारी चीज रख दी जाती है, कहते हैं कि ये रखी रहेगी तो पेट फूलेगा नहीं, अगर फूले कोई वजह हो तभी तो, या साइंसी या कोई तिब्बी वजह हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिला वजह भारी चीज रख देना मना है, तकलीफ है उसको। ऐसे ही उसका जबड़ा कसकर बांध देना या उसके दोनों पांव के अंगूठे बांध देना, अगर कोई वजह है तो ठीक, नहीं तो इस तरह कसकर बांधना इजाजत नहीं है इसकी। मैयत के साथ नरमी का हुक्म है, उसको अजियत दी जा रही है, मरने वाले को भी नहीं छोड़ते, हत्ता के लोग पोस्टमार्टम तक चले जाते हैं। पोस्टमार्टम जिसकी जब तक कोई शरई कानूनी जरूरत ना हो, शदीद जरूरत ना हो, उसकी इजाजत नहीं है। मरने वाले के आज़ा निकाल लिए जाते हैं, उस पर तजर्बात किए जाते हैं। जी हाँ, मेडिकल की फील्ड में सीखने वाले स्टूडेंट्स को उनको बाकायदा मैयत यानी मुर्दा लोगों के आज़ा निकाल निकाल कर उन पर तजर्बात सिखाए जाते हैं। बेहुरमती की जाती है, जब उसको मैयत को लेकर चलें, उसको तेज लेकर चलने से मना किया गया है, तो उसको झटके लगेंगे, तकलीफ होगी। ऐसे ही रिवाज में आता है, कसरु अज़्मिल मय्यति का कसरिही हय्यन, फरमाया मुर्दा की हड्डी को तोड़ना ऐसे ही है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ना, उसको तकलीफ होती है। ऐसे ही है, लोग जो है वो कब्रों पर चढ़ जाते हैं मय्यत की, ऐसे ही उनकी कब्रों पर बैठ जाते हैं, उसको रास्ता बना लेते हैं, वहां पर पेशाब पाखाना करते हैं। लोग जो है वो एक कब्र पहले जिसमें दफना चुका गया मुर्दा, उसको बाकायदा कुछ अरसा गुजर जाए तो उसकी जगह दूसरे को दफना देते हैं, हालांकि दूसरी जगह मौजूद होती है, मौजूद ना हो वो एक अलग बात है। फिर बर्फ खाने में रखना, ये भी उलमा ने नाजायज लिखा है। बर्फ खाने में रखना आजकल कोई ऐब ही नहीं समझा जाता, कोई शरई शदीद जरूरत हो तो उसको मुर्दे को बर्फ खाने में रख सकते हैं, वरना मना है, नहीं रख सकते, तकलीफ पहुंचाई जाती। तो इस तरह लोग मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचाने से नहीं हटते। ऐसे ही अपने अमाल से अपने प्यारों को तकलीफ पहुंचाना, फरमाया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इन्ना अमालुकुम तुअरदु अला अक़ारिबिकुम व अशाइरिकुम मिनल अमवाति फ़इन काना खैरन इस्तबशरू बिही व इन काना गैर ज़ालिका क़ालू अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना, कि जब तुम्हारे आमाल तुम्हारे अजीज रिश्तेदारों पर, तुम्हारे रिश्तेदार अहलो अयाल पर पेश किए जाते हैं, और जब तुम्हारे अमल अच्छे होते हैं तो वो खुश होते हैं, और अगर तुम्हारे आमाल बुरे होते हैं तो उनको तकलीफ होती है, तो तुम अपने आमाल से अपने मुर्दों को भी तकलीफ ना पहुंचाओ। खास तौर पर जब औलाद कोई बुरा काम करे तो उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है, तो अपने माँ बाप को राहत पहुंचाने का एक जरिया तरीका ये भी है कि उनके मरने के बाद अच्छे अमाल किए जाएं। कितने ऐसे होंगे जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके होंगे, लेकिन क्या वो अच्छे अमाल करते हैं? अच्छे अमाल से अपने वालिदैन को राहत पहुंचाते हैं या तकलीफ में मुब्तला करते हैं? और फरमाया मुर्दों के ऐब बयान ना करो, उज़्कुरू महासिना मौताकुम वकुफ़ू अन मसावीहिम, अपने मुर्दों के पीछे यानी जो मर गए हैं उनकी अच्छाइयाँ बयान किया करो, उनकी बुराइयाँ छोड़ दो। वो गए अपने साथ ले गए, उनकी बुराइयाँ उनके लिए, लेकिन तुम उनकी अच्छी बातें किया करो। हम मरने वालों की भी क़ीमत करते हैं,
मरने वालों की भी बुराइयां बयान करते हैं, ना जिंदों को छोड़ते हैं ना मुर्दों को, ना इंसानों को छोड़ते हैं ना जानवरों को, ना बच्चों को छोड़ते हैं ना बड़ों को, ना किसी नेक को छोड़ते हैं ना किसी बद को, ना छोटे को ना बड़े को। लोग माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को नहीं हम छोड़ते। मुसलमान का ये रवैया नहीं होना चाहिए। हत्ता कि इससे बढ़कर लोग सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान में भी गुस्ताखियां करते हैं। अबू अब्दुल्ला मोहतदी, चूंकि हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का 13 रजबुल मुरज्जब को यौम पैदाइश के हवाले से एक रिवायत है, इसका खुलासा समझिए। फरमाते हैं कि वो हज पर गए, उन्हें पता चला कि वहां पर कोई शख्स है जिसको प्यास नहीं लगती, बगैर पानी के जिंदा रह लेता है। उनके पास गए और पूछा कि क्या हुआ। अबू अब्दुल्ला मोहतदी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इराक में रहता था और वहां के गुस्ताखाने सहाबा के साथ सहाबा को बुरा समझता था और हजरत अली को तरजीह देता था दीगर खुलफाए सलासा पर। तो फरमाते हैं कि मुझे प्यास लगी और मैं ख्वाब में, जब मैं सोया तो मैं ख्वाब में प्यासा था और प्यास के दौरान मैंने देखा कि हौज़े कौसर पर चारों खुलफा हैं और वो सैराब कर रहे हैं प्यासों को। मैं हजरत अली के पास, उन तीनों सहाबा को छोड़कर हजरत अली के पास गया। जब उनसे मैंने कहा कि मुझे पानी पिलाइए तो उन्होंने मुझसे चेहरा फेर लिया। फिर कहते हैं हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर के बाद उन्होंने भी चेहरा फेर लिया। फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए और उनसे मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझसे हजरत अली ने भी और दीगर ने भी चेहरा फेर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैफा यस्टीका वांता तुबग़िदु अस्हाबी, फरमाया वो तुझे प्यास से कैसे शराब कर सकते हैं जब तू मेरे सहाबा से दिल में बोझ रखता है, जब तू उन्हें बुरा कहता है, बुरा समझता है। तो कहने लगा मेरी तौबा की सूरत, इरशाद फरमाया सच्ची तौबा कर और फिर मैं तुझे ऐसे शराब करूंगा फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगी। फरमाते हैं कि मैंने तौबा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शराब किया। फरमाया जब से उठा हूं उसके बाद जी चाहता है तो पी लेता हूं, वरना उसके बाद से मुझे प्यास कभी महसूस नहीं होती। सहाबा से भी मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, उनकी बुराई करके उनको तकलीफ ना दी जाए। लोग सहाबा को भी नहीं छोड़ते, सहाबा की बुराइयां करते हैं, सहाबा किसी सहाबी से भी बुग़्ज़ नहीं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मौलाना मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी मुद्दज़िलुल आली ने ये ज़हन दे दिया है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बस हर सहाबी जन्नती है, किसी सहाबी को बुग़्ज़ के साथ उनकी याद करने की इजाजत नहीं है। और आखिर में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल ज़हन में रखिए। आपने फरमाया कूनू फिन्नासी कन्नहलति फित्तैरी इन्नहु लैसा मिनत-तैरी शैउन इल्ला वहुवा यस्तदइफुहा वलौ यअलमुत-तैरु मा फी जौफिहा मिनल बरकति लम यफ़अलू ज़ालिका बिहा। फरमाया लोगों के दरमियान तुम शहद की मक्खी की तरह रहा करो। हजरत अली का कितना प्यारा कौल। फरमाया कि जिस तरह दीगर परिंदे उस शहद की मक्खी के बारे में ये नहीं जानते कि उसके पेट में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रख दी है और वो उसकी अहमियत को नहीं समझते, फरमाया तुम इस तरह वो दीगर परिंदे उस शहद की मक्खी को तकलीफ देते हैं और उसे नोचते हैं। फरमाया तुम शहद की मक्खी की तरह हो जाओ कि दीगर परिंदे तकलीफ देते हैं फिर भी वो उन परिंदों के लिए, लोगों के लिए शहद तैयार करती है। लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाएं लेकिन तुम तकलीफ ना पहुंचाओ, तुम फायदा ही पहुंचाओ, तुम बेहतर ही सोचो। फरमाया खालिकुन नास बिअल्सिनतिकुम व अजसातिकुम वज़ायलूहुम बिअमालिकुम व क़ुलूबिकुम, फरमाया लोगों के दरमियान अपनी ज़बान से भी और अपने जिस्म से भी और अपने दिल से भी ऐसे अच्छे हो जाओ कि वो तुमसे किसी मुसीबत का, किसी अज़ियत का सामना ना करें। फ़इन्ना लिलमर्इ मक्तसबा व हुवा यौमल क़ियामति मअ मन अहब्बा, फरमाया बेशक क़यामत के दिन जो बंदे ने कमाया होगा वही पाएगा और वो जिसके साथ मोहब्बत रखता होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे उसी के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। इसलिए लोगों के साथ अच्छी मोहब्बत, उनको तकलीफ से दूर रहें, ना तकलीफ दें, ना तकलीफ देने वालों का साथ दें, बल्कि अजियत रिसानी से दूर होकर ईज़ाए मुस्लिम से बचकर मुसलमानों के लिए अच्छे का जरिया बने। बशिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, खुशखबरियां दो, नफरत ना फैलाओ, अच्छी बातें करो, बुरी बातों से दूर हो जाओ। अल्लाह ताला हमें अमल करने फरमाए और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमाए। वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते यादें, मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते।